Hello, my dear friends. Today I will discuss Subhash Chandra versus State, Chandigarh Administrations and Others, 1979. As you know, that this case was decided by the Honorable Justice B.R. Krishna Iyer, and in this case, some important topics were covered. And in this case, most important word was used by the Honorable Justice Krishna Iyer. And according to him, he said that the judges are not fungible. What is the meaning here? Judges are not fungible. Here, judges are not fungible, not the fungible. The judges are not fungible. Fungible means exchangeable. It means here it was said that functions of the judges cannot be transferred in the hand of the other persons. That's why it was said the judges are not fungible. As you know that in the previous classes I have already told you that there are two limbs of the section 321 of the CRPC. First limb was that the PP and APP, and second limb is the court. And in this case, Honorable Justice Krishna Iyer said that judges are not fungible. It was said that it is not the function of the executive to administer criminal justice, and in our system, judges are not fungible. It was said that what was the point in this? It was said that a function of the executive is to execute the law rather than to deliver the justice. That's why function justice delivery system is in the hand of the judges rather than in the hand of the executive. That's why judges are not fungible. And second part was that in this case it was observed that the section 321 is the exception. What is the meaning of the exception in this here? Here exception here means it is that rule is that once a case starts, it must be concluded without interruption. But Section 321 is one of the exceptions regarding that. It's Section 321, even the case is not concluded finally, and it is interrupted by the Section 321. So that's why Section 321 is called the exceptions of the rule. Third point is that the all public power is the public trust. It means what was the point is that it was that the at the time of using or at the time of giving the at the time of giving the application for withdrawal of the prosecutions, PP public prosecutors judges must consider that they are performing the functions as a public trustee rather than as an individual, rather than as a part of the body of the executive. So that's why it was said that the public power must be performed under the public trust. Next point regarding the fourth point is that the consent of the court is check on the exercise of the power. I already told you that there are two limbs. First is the public prosecutors and assistant public prosecutor, and second is the court, and both performs as a check and a balance. In these points here is that the court is must perform as a check and a balance on the power of the executive. And as you know that the executive exercise their power in this case with the help of the public prosecutor, but it is also it has been held in several cases that the public prosecutor must apply his own mind. After that, here is that next point is that the purpose of withdrawal of the purpose. What should be purpose of withdrawal of the purpose? Whether it must be withdraw the prosecution cases only to satisfy the boss, or it must be withdraw cases with certain purposes. It was said that the at a time of giving the consent, it must be considered what purpose we can get after withdrawing the cases. First point is that regarding the public peace. Yes, purpose of the prosecution must be that the by withdrawing such cases, there must be public peace. And as you know that in the previous case, I discussed some important and illustrative examples given by the V.R. Krishna, Honorable Justice V.R. Krishna Iyer. And according to him, if in the case of the labor disputes and the writing cases, here is that the some examples was quoted by the Krishna Iyer was the communal feuds, labor disputes, public justice. In these cases, it established the public peace. Even the Honorable Justice Krishna Iyer in the second case, Subhash Chandra case, he said that the cases must be withdrawn for the public peace. It must be withdrawn after considering the public justice, larger public justice, and it must also be
keep in mind that whether after withdrawing the uh, prosecutions it will restore long lasting security in a locality, and it was said that the order of disorderly, whether it will establish the social settings and halting a false and vexatious prosecution in the court. It means, according to him, at time of withdrawing the prosecution, it must be observed whether it will settle the public peace, whether it is the for the larger public justice, whether it will restore the security, whether it will set the social order, whether it will halt the false and vexatious prosecution in the court. It means this point must be considered before giving the consent for the uh, withdrawal of the cases. And he said that the wider benefit must be considered, and he suggested that section 321 must be used sparingly exercised. स्पेरेंगली मतलब कभी कभी इस पावर को एक्सरसाइज किया जाना चाहिए, एंड स्टेचुटरी अथॉरिटी नॉट द डिस्ट्रिक्ट और द मिनिस्टर। उनका कहना था कि जो स्टेचुटरी अथॉरिटी है मस्ट सेटिस्फाइड दैट द एक्चुअल पावर इज इन द हैंड ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर rather than in the hand of the district DM or ministers. It was said that this power is not in the hand of the district magistrate. It is not in the hand of the district magistrate or ministers. Next point is that after prosecutions are the limb of the judicial process rather than extension of the executive. This powers is also said this point that the prosecutions are limb of judicial process rather than extension of the executive. It means we have to consider these 6 points. First point is that judges are not fungible. जजेज आर नॉट फंजिबल, सॉरी फंजिबल, फंजिबल मतलब कि जजेज का जो काम है जज ही कर सकता है। यह अब ऐसा फंक्शन नहीं है जो एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दिया जाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का फंक्शन जो है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम नहीं है। सेकेंड पार्ट कहा गया कि 321 एक्सेप्शन है। रूल क्या कि एक बार अगर केस स्टार्ट हो गया तो फाइनल केस डिसाइड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस के बेसिस पर डिसाइड होना चाहिए। लेकिन 321 एक्सेप्शन है, यहाँ एविडेंस के बेसिस पर केस डिसाइड नहीं होता है, बल्कि कुछ सर्टेन पर्पजेस के लिए पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत केस को ही विड्रॉ कर लिया जाता है। इवन स्ट्रांग एविडेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो ये एक्सेप्शन हो गया। और कह रहा है कि ये जो प्रोसिक्यूशन हो, कोर्ट हो, जो भी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं एक पब्लिक ट्रस्टी की तरह ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, और कोर्ट के पास जो पावर है इन द हैंड ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के पास जो पावर है वो चेक एंड बैलेंस के रूप में यूज होना चाहिए। और इनका नेक्स्ट पॉइंट कहना था कि ये पर्पस होना चाहिए, कुछ सर्टेन पर्पजेस के लिए हम अपना काम करना चाहिए, जैसे कि हमें ये देखना चाहिए क्या इससे पब्लिक पीस इस्टेब्लिश होगी कि नहीं होगी। तो पहला पॉइंट इनका है कि पब्लिक पीस आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका लार्ज कंसिडरेशन, लार्ज नंबर पे पब्लिक को क्या मिलेगा, ऐसा नहीं देखना कि एक चीफ मिनिस्टर को क्या फायदा हो रहा है, एक मंत्री विधायक को क्या फायदा हो रहा है, नहीं, एक व्यक्ति विशेष को नहीं ध्यान में रखना है, हमें होल पब्लिक जस्टिस को ध्यान में रखना है। और ये देखना है कि क्या इससे क्या फायदा होगा, क्या सोसाइटी की जो शांति भंग हो गई है क्या वापस आएगी, क्या सोसाइटी क्या जो सोशल सेटिंग जो खराब हो गया था, आपस में लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर दंगा लड़ने लगे थे, क्या उस तरह का ये शांति वापस रिस्टोर होगी। और कह रहे हैं कि जो फॉल्स और वेक्सिशियस केसेस कई बार होते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा के अंतर्गत, क्या उसको रोका जा सकता है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात कही कि इसको हमें स्पेरेंगली यूज करना है, मतलब कि ये भोजन नहीं है कि डेली सुबह शाम खाते रहो, ये दवा की तरह यूज करना है, एक मेडिसिन की तरह यूज करना है। और फाइनली ये देखना है कि जो रियल पावर है, रियल पावर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हैंड में है रादर देन किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मिनिस्टर के हाथ में है। और लास्ट में यही कहा गया था कि इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रोसिक्यूटर है वो जुडिशियल बॉडी का पार्ट है रादर देन एग्जीक्यूटिव का एक्सटेंशन है। तो इस तरह की बातों को ध्यान में रख करके हमें आगे बढ़ना होगा। अब हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, टाइम भी बहुत कम है, इसलिए हम तेजी से थोड़ा सा बढ़ेंगे। जब हम सेकेंड केस की तरफ मूव करते हैं तो हमारे शिवनंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू, स्टेट ऑफ बिहार है, जिसको जगन्नाथ मिश्रा के केस के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ मिश्रा
और वही है जो कि बिहार में 3 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, इनके ऊपर भी कई घोटाले भी हुए हैं, कन्विक्शन भी हुए थे। और इनका बैंक घोटाला और स्कैम, फॉर्डर स्कैम घोटाला इनका बहुत ही फेमस रहा है। फेमस क्या रहा है, रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय किया है, और इनको भी मिस्टर लालू यादव के साथ इनको भी कन्विक्ट किया गया था। तो जो भी है इस तरह के मैटर, लेकिन यहाँ पे जो मैटर विड्रॉल का है तो हम विड्रॉल का यही देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने बैंक घोटाले का इनके ऊपर केस फाइल हुआ था, इसका मैटर है। तो सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि ये केस डिसाइड हुआ था 20 दिसंबर 1986 को। 20 दिसंबर 1986 एक वही पार्टिकुलर डेट है जिस दिन ऑनरेबल जस्टिस पी एन भगवती रिटायर होते हैं। और ऑनरेबल जस्टिस पी एन भगवती जिस दिन रिटायर हुए उस दिन उन्होंने 2 लैंडमार्क जजमेंट डिसाइड किए हैं। एक तो आप लॉ ऑफ टार्ट्स में पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का चैप्टर है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। और एक हमें सी नंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। तो ये दोनों है केस ऑनरेबल जस्टिस पी एन भगवती ने डिसाइड किया। और इस केस को डिसाइड जब किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसाइड किया। कौन डिसाइड किया है इसको? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको डिसाइड किया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब ये था कि इस केस को डिसाइड करने में 5 जजों का पार्टिसिपेशन था। और फैक्ट में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए फैक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। फैक्ट में आप देख रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्रा जी हैं। जगन्नाथ मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर हैं। कब चीफ मिनिस्टर हैं? ड्यूरिंग इमरजेंसी। ड्यूरिंग इमरजेंसी में मिनिस्टर रहते हैं, चीफ मिनिस्टर रहते हैं। और इस दौरान एक कोऑपरेटिव बैंक है, उनमें घोटाला होता है। और जैसे इनका सरकार जाती है, इमरजेंसी खत्म होती है, सरकार जाती है, इनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। एफआईआर किस लिए होती है? एफआईआर देखिए आप, एफआईआर होती है किस सेक्शन में होती है? तो सेक्शन 420, 466, 120 बी, और मतलब एक कंस्पिरेसी के तहत चीटिंग करना है। और साथ साथ में कुछ ये तो आईपीसी के हो गए, और सेक्शन 5 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के भी कुछ ऑफेंसेस थे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इनके खिलाफ आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत इन पर केसेस स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे केस स्टार्ट होते हैं 77 के बाद से केस स्टार्ट होते हैं, मतलब 77 से 80 तक के चीफ मिनिस्टर नहीं रहते हैं, उसी समय केस स्टार्ट होते हैं। और इनके खिलाफ केस पुलिस रिपोर्ट भी सबमिट हो जाती है, चार्जशीट भी सबमिट हो जाती है, और फाइनली कोर्ट कॉग्निजेंस भी ले लेता है। और जब अपोजिट पार्टी थी, जब मतलब 80 से पहले की जो सरकारें थी, मतलब जगन्नाथ जी दोबारा जो चीफ मिनिस्टर बने थे 1980 से 83 के बीच में आए हुए थे, तो 1980 से पहले की जो सरकार थी, उन्होंने आप देखेंगे कि उन्होंने मिस्टर ए के दत्ता को वो अपॉइंट किया था, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया था। और मिस्टर ए के दत्ता इस केस को डिसाइड कर रहे थे। और ए के दत्ता का अगर आप अपॉइंटमेंट देखेंगे तो 26 फरवरी 1979 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। 26 फरवरी 1979 को इनका आप देख रहे हैं कि इनका अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन ये अपोजिट पार्टी द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं, अपॉइंटेड रहते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सेक्शन 24 क्लास एक्ट के अंतर्गत स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वही व्यक्ति अपॉइंट हो सकता है जिसका कि 10 साल का मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट होने के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 7 ईयर्स का हो, और एपीपी अपॉइंट होने के लिए आपका सर्टिफिकेट एलएलबी का काफी है। तो ए के दत्ता अपॉइंटमेंट होते हैं अपोजिट पार्टी के द्वारा। और इसी बीच क्रोनोलॉजी समझिए, 77 में सरकार गई, एफआईआर लॉन्च हुआ, और ए के दत्ता अपॉइंटमेंट हो गए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में। और जगन्नाथ मिश्रा जी का लक कितना तगड़ा था कि 1980 ईस्वी में आप देख रहे हैं कि दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन गए। जब 80 में चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो इनकी एक करतूत देखिए। सबसे पहले आते ही इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा इनका ऐतिहासिक कदम था कि जिस दिन सत्ता में आया उसके मात्र 2 दिन के बाद ही इन्होंने केस को विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन दे दिया। तो केस को विड्रॉ करने के लिए अभी जैसे कि आप भी देखेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार भी जैसे ही सत्ता में आई, सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम ये किया था कि जो मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जो केसेस थे उसको विड्रॉ करने का एक प्रोसीजर स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जगन्नाथ मिश्रा जी जैसे सत्ता में आते हैं, 8 जून को शपथ लेते हैं, 10 जून को एप्लीकेशन दे देते हैं कि केस को विड्रॉ किया जाए। जब 10 जून को इन्होंने डायरेक्शन दिया तो उस समय ए के दत्ता स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। ए के दत्ता ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। ए के दत्ता ने क्या बोले,
एक दत्ता के ही वाज नॉट रेडी टू विड्रॉ, और विड्रॉ करने के लिए रेडी थे ही नहीं। जब विड्रॉ करने के लिए रेडी नहीं थे एक दत्ता, तो एक दत्ता को रिप्लेस किया गया। किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नए व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होता है। किसका अपॉइंटमेंट होता है? मिस्टर एल पी सिन्हा जी का अपॉइंटमेंट होता है। यहाँ कॉमन नहीं होना चाहिए, एल के बाद वो होना चाहिए, मिस्टर एल होना चाहिए, कामा गलत है, कामा नहीं, फुल स्टॉप होना चाहिए, कामा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मिस्टर एल पी सिन्हा जी का अपॉइंटमेंट होता है। कब अपॉइंटमेंट होता है? 1981 होता है। देखिए, एक होता है ना, जैसे कि एक कुत्ता होता है अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, तो हिंदी में यही एकदम सूट कर रहा है। एक दत्ता अपोजिट पार्टी से द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं, वो रेडी नहीं होते हैं, लेकिन एल पी सिन्हा जैसे अपॉइंटमेंट होते हैं, वो तुरंत ही 24 फरवरी को अपॉइंटमेंट होते हैं, उसके तुरंत बाद ही वहां पे एप्लीकेशन दे देते हैं कि जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ केस को विड्रॉ किया जाए। अब मिस्टर ए के दत्ता की तो कब कहना था कि नहीं, केस का मैं इंचार्ज हूँ, और एलपी सिन्हा का कहना था कि मैं इंचार्ज हूँ। तो ये हुआ कि केस का इंचार्ज कौन है। अब इस मैटर को, जगन्नाथ मिश्रा के मैटर को कोर्ट में चैलेंज किया। अब किसने चैलेंज किया? आप देख रहे हैं कि जो नाम है, नाम तो शिव नंदन पासवान का है। शिव नंदन पासवान है कौन? तो शिव नंदन पासवान के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में आपको जाएंगे। तो शिव नंदन पासवान जो अपोजिट पार्टी के लीडर थे। शिवनंदन पासवान क्या थे? अपोजिट पार्टी के थे। आप देख रहे हैं कि ये अपोजिट पार्टी के लीडर है, और साथ में देख रहे हैं कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। और उस समय जो मटेरियल टाइम था, मतलब कि इनके आने से पहले, जगन्नाथ मिश्रा के आने से पहले, वो डिप्टी स्पीकर भी थे। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि शिवनंदन पासवान पूरी तरह से जगन्नाथ मिश्रा के अपोजिट एक लीडर हैं, और इन्होंने इसको चैलेंज किया था कोर्ट में कि नहीं, आप केस को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो बाद में लोकस स्टेंडाई का भी प्ली लिया गया था कि नहीं, शिवनंदन पासवान जो अपोजिट पार्टी के लीडर हैं, वो केस कैसे फाइल कर सकती है, वो तो इस पे इंटरेस्टेड पार्टी ही नहीं थे। बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे हाँ, ए के दत्ता और एलपी सिन्हा में कंट्रोवर्सी है कि कौन केस का इंचार्ज है। तो इस केस में हमने पहले भी कहा था, पिछले क्लास में बता रहा था कि ओल्ड सीआरपीसी और न्यू सीआरपीसी में यही बेसिक अंतर है कि न्यू सीआरपीसी आने के बाद वर्ड ऐड किया गया। क्या वर्ड किया गया? इन चार्ज ऑफ ए केस। इस वर्ड को यूज करने से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब प्रेजेंट टाइम में एलपी सिन्हा केस का इंचार्ज हैं, आप केस के इंचार्ज नहीं हैं। तो इस तरह से ए के दत्ता का जो आर्गुमेंट था उसको रिजेक्ट किया गया था, और एलपी सिन्हा को इंचार्ज माना गया था, और अथराइज भी माना गया था कि एलपी सिन्हा अथराइज हैं। और बाद में देखेंगे कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, केस जो विड्रॉ करने का एप्लीकेशन था वो सही एप्लीकेशन था। तो लेकिन आर्गुमेंट था कि अब इन्होंने 4 बेसिस पर एलपी सिन्हा ने आर्गुमेंट किया। कहा कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है। क्या इनका कहना था? इनका कहना था कि भाई देखिए, लैक ऑफ प्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे एविडेंस नहीं है। किसी का अभाव है, इसमें एविडेंस का अभाव है। और कह रहे हैं कि ये जो किया गया है वो पर वेंडेटा है, कि किस तरह का है, पर्सनल एंड पॉलिटिकल वेंडेटा के अंतर्गत केस फाइल किया गया है। और इसमें इनको कहना था कि इसमें इन एक्सपीडियंसी ऑफ प्रोसिक्यूशन बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। तो ये सब तो ग्राउंड तो ठीक है, मतलब आपको अगर केस जीत गए तो सब कुछ ठीक ही ठीक है, अदरवाइज तो सिचुएशन कुछ और हो जाता। और इसमें यही कहना था कि अगर हम इस तरह के केसेस को अगर कंटिन्यू करेंगे, तो विल कंटिन्यूएंस ऑफ द विल ब्रिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन द लाइट ऑफ द चेंज सिचुएशंस। इस तरह के हम एडवर्स इफेक्ट डालेगा पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ। तो इन्होंने कहा था कि ये एविडेंस प्रॉपर नहीं है, वेंडेटा नहीं है, केस बहुत स्लो चल रहा है, और पब्लिक इंटरेस्ट को भी इसमें फायदा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो शिवनंदन पासवान का जो मैटर आया, स्पेशल जज के पास लाया गया। स्पेशल जज ने कंसेंट भी दे दिया। कंसेंट कब दिया था? तो कंसेंट आप देख रहे हैं कि 1980 को जैसे केस आया है, केस उनको कंसेंट दे दिया गया है। जून 1981 में हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में रिव्यू पिटिशंस को डिसमिस्ड कर दिया गया। हाई कोर्ट ने क्या किया? रिव्यू पिटिशन को डिसमिस कर दिया। मतलब हाई कोर्ट ने स्पेशल जज के डिसीजन को वैलिड माना। और जगन्नाथ मिश्र के खिलाफ हाई कोर्ट का भी जजमेंट आता है। और हम अब आगे की तरफ जब मूव करेंगे तो हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जब आता है, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कितने बेसिस पर चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इसमें जो बेसिस आया हुआ था, देखेंगे कि 4 बेसिस पर इसमें चैलेंज किया गया था। पहला इनको कहना था कि इसमें पीपी ने
अपने माइंड को अप्लाई ही नहीं किया था। दूसरा इसमें कहा गया था कि यह सिन्हा जी कॉम्पिटेंट ही नहीं है, क्योंकि अभी मैं बता रहा था कि दत्ता जी का कहना था कि सिन्हा जी केस का इंचार्ज नहीं है। तो दूसरा आर्गुमेंट ये था कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले केसेस में देख रहा था कि पीपी का अपना माइंड अप्लाई करना मैंडेटरी था, और दूसरा देख रहा था कि केस का इंचार्ज कौन है। तो हमने अभी आपको बताया भी था कि जब इंचार्ज करने की बात आती है तो स्पेशल जज जो वर्ड अपॉइंटमेंट होता है, किस प्रोविजन के अंतर्गत अपॉइंटमेंट होता है? ये तो बहुत खतरनाक है भाई। किसके अंतर्गत अपॉइंटमेंट होता है? तो 24 क्लास एक्ट के अंतर्गत अपॉइंटमेंट होता है। और नो इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ मिस्टर सिन्हा, इसका कहना है कि सिन्हा जी ने एग्जीक्यूटिव की फाइल ला करके कोर्ट के सामने रख दिया है, और इन्होंने कोई भी अपना खुद का डिसीजन इन्होंने नहीं लिया है। तो नो इंडिपेंडेंट डिसीजन, इस 3 ग्राउंड पे चैलेंज किया गया। अब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है। पहला तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ओल्ड सीआरपीसी और न्यू सीआरपीसी में अंतर है, मैंने आपको बता भी दिया था। और ओल्ड सीआरपीसी कौन सी थी? सेक्शन 494 ओल्ड सीआरपीसी डिस्कस कर रहा है, और न्यू सीआरपीसी जो डिस्कस कर रहा है आप देख रहे हैं कि 321 है न्यू सीआरपीसी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि टू लिम्ब है। टू लिम्ब का मतलब क्या है? कि इसमें कहा गया था कि एक लिम्ब तो आपका है पीपी है, एपीपी है, दूसरा लिम्ब कोर्ट है। इस बात को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इसेंशियल कंडीशन भी इसमें बताए थे। इसेंशियल कंडीशंस मैंने आपको बता दिया हूँ। मैंने 3 बताए थे कि एप्लीकेशन किसके द्वारा होना चाहिए, पीपी एपीपी द्वारा होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए कि वो केस का इंचार्ज होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए कि कोर्ट का कंसेंट होना चाहिए। 3 कंडीशन होना चाहिए। और इसमें कहा गया था कि मोटिव डज नॉट अफेक्ट, अगर क्रिमिनल केस अगर आपका बन रहा है तो मोटिव किस तरह का है ये पॉइंट अफेक्ट नहीं करेगा। और कोर्ट को ध्यान में रखना होगा कि इसमें आपको एविडेंस का इवेल्युएशन नहीं करना है कि इसमें टोटल होगा कन्विक्शन होगा, इस पॉइंट को आपको डिस्कस नहीं करना है। प्राइमरी फेसाई आपको देखना है कि यह गुड फेथ में किया गया है कि नहीं किया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट को इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, और नॉट टू फर्स्ट स्टफल टू द प्रोसेस, जो लॉ का जो इम्प्लीकेशन है, लॉ का इन्फोर्समेंट है, ऐसा देखा जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लॉ का गला ही घुट जाए। तो ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। मतलब कुल मिला जुला करके पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक जस्टिस, गुड फेथ और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये सब चीजें देखना पड़ेगा। और इसमें कहा गया था कि आउटर लिमिट सेक्शन 321 की क्या है। तो जब आउटर लिमिट के ये देखा गया था कि कब तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो केस आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। तो इसमें लिखा हुआ कि एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, इसको आप कभी भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब कि चार्ज फ्रेम करने से पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं, चार्ज फ्रेम करने के बाद भी विड्रॉ कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस दे दिया गया तब भी विड्रॉ कर सकते हैं, डिफेंस अपना एविडेंस दे चुका है तब भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से जजमेंट राइटिंग करने से पहले कभी भी आप इसको दे सकते हैं। तो एक केस हमारा रहा, शॉर्ट में हमने आपको डिस्कस कर दिया, शिवनंदन पासवान का केस। और नेक्स्ट केस है जो कि श्री अब्दुल करीम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स का है, जो कि हमारे सिलेबस में भी है, डीयू के सिलेबस में। तो डीयू के सिलेबस में है तो इसका फैक्ट बहुत ही हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। एक फैक्ट आपका है कि केस कब डिसाइड हुआ है, तो पहला पॉइंट है कि 7 नवंबर 2000 को डिसाइड हुआ है। किसने डिसाइड किया है? ऑनरेबल जस्टिस सबरवाल ने डिसाइड किया है। और इस केस को किस नाम से जाना जाता है? वीरप्पन केस के नाम से जाना जाता है। अब वीरप्पन केस, सबको वीरप्पन मालूम है कि साउथ इंडियन का एक बहुत ही नोटोरियस डकैत है, जो कि हाथी के दांतों का आइवरी और स्कैंडल, इसका मतलब चंदन की लकड़ियों का व्यापार करता रहता है इलीगल तरीके से, हाथियों को गोली मारता है, पुलिस को गोली मारता है, कई पुलिस को गोली मारता है, और चंदन की लकड़ियां इलीगल रूप से काट करके उसको बेचता है। और एक दिन वो क्या करता है कि राजकुमार एक हीरो है, राजकुमार हीरो को उन्होंने किडनैप कर लिया। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि हम यही कहेंगे कि राजकुमार हीरो को भी थोड़ा, राजकुमार जी जो हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए था। क्योंकि ऑलरेडी इनपुट मिल रहे थे कि राजकुमार को, मिस्टर राजकुमार को वीरप्पन किडनैप कर सकता है। तो होता क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं वो भी हमेशा सिक्योरिटी को धदा बताते रहते हैं, और देश को कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, और डेमोक्रेसी का कितना क्रिटिसाइज होता है, डेमोक्रेसी पे कितना दाग लग जाता है। तो ये लोग सोचते नहीं है, जो भी मन में आता है निकल पड़ते हैं। तो ये सब डिसीजन, ये सब कोई अच्छी बात नहीं है। तो फैक्ट यही था कि
एक आप सब लोग जानते हैं कि वाज नोटोरियस क्रिमिनल। तो एक यहाँ पर भी करेक्शन थोड़ा सा है। कहाँ पे करेक्शन है भाई? यहाँ पे मैं लिखना चाहिए था कि वीरप्पन वाज नोटोरियस, ये लिखना चाहिए था वीरप्पन। वीरप्पन वाज नोटोरियस क्रिमिनल। ही इन्वॉल्व किस क्या स्मगलिंग करता था? ये स्मगलिंग आइवरी की करता था और सैंडलवुड की करता था। सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ियों का, वो इलीगल तरीके से करता था। और कहाँ पे करता था? वो तमिलनाडु और कर्नाटका का बॉर्डर एक दूसरे से सटा हुआ उसी के जंगलों में करता था। और एक राजकुमार जी हीरो हैं और वो बहुत ही साउथ इंडिया के पॉपुलर हीरो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पॉप फिल्म स्टार राजकुमार जी क्या हैं, एक फिल्म स्टार हैं और साउथ में हीरो का बहुत ही क्रेज होता है। और उसने क्या किया कि एक दिन जब वो अपने फर्म, पहली बार तो फर्म में गए, चुपके से चले आ गए, कोई पता नहीं चला। लेकिन दोबारा जब फर्म में गए तो जब आप जान रहे हैं कि आप इतने बड़े हीरो हैं, आप जंगल में जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो आपको कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था कि हाँ भाई हम वहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे। ये क्या किए, चुपचाप फैमिली के साथ उठे, मित्र के साथ उठे, जंगल में अपना फर्म था अपना, वहीं चले गए, वहीं से उसको इनको किडनैप कर लिया। अब किडनैप इन्होंने खुद करा दिया कि कर लिया, ये सब सारे के सारे आज भी डिस्प्यूटेड पॉइंट हैं। लेकिन मिला जुला करके इन्होंने इनको किडनैप कर लिया गया। और जब किडनैप कर लिया गया था तो पूरे भारत में और स्पेशली साउथ कर्नाटका ये सब में बहुत ही प्रेशर होने लगा और उसने एक डिमांड रखा। तो वीरप्पन ने तो कई ऐसे डिमांड रखे थे जिससे कि वो बहुत ही पॉपुलर हो गया। देखिए विलेन जो होते हैं, विलेन भी नब्ज को समझते हैं, वो समझते हैं कि जनता इतनी मूर्ख है कि भी इनको किसी तरह से डिबेट कर सकते हैं। अब उन्होंने ऐसे ऐसे डिमांड रखना शुरू किया कि कई कर्नाटका तमिलनाडु के लोग उसको, कर्नाटका तमिलनाडु के लोग उसको हीरो की तरह मानने लगे। जैसे उसका कहना था कि कावेरी नदी का पानी कर्नाटक को इतना मिलना चाहिए, तमिलनाडु को इतना मिलना चाहिए, इसको उतना मिलना चाहिए। तो लोगों को लगा कि अरे सरकारें तो आज तक जो काम नहीं कर पाई वीरप्पन तो एक दिन में धमका करके राजी कर दिया। तो इसी तरह से देखेंगे तो मैं भी जैसे कि पांडिचेरी में लगभग 8 महीने सर्विस करके आया हूँ। हम देखेंगे कि कुछ लोग तो उसको अभी भी हीरो की तरह ही मान रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो हम अलग चीज है तो यहाँ पे देखेंगे। उसकी मांग में सारे हमारे जो सीआरपीसी के पर्पज से है, उसका एक पर्पज ये भी था कि उसके कई जो साथी थे वो टाडा के अंतर्गत अरेस्ट किए गए थे और टाडा के अंतर्गत ही उनका केस चल रहा था। तो कई डिमांड में उसका एक डिमांड ये भी था कि हमारे जितने साथी हैं टाडा के अंतर्गत जिनका केस चल रहा है उसके खिलाफ भी विड्रॉ किया जाए। अब उसकी धमकी का इतना प्रेशर था कि कर्नाटका तमिलनाडु की सरकारों ने आपस में मिल करके एक समझौता कर लिया और बोल दिया कि भाई वीरप्पन तुम राजकुमार हीरो को छोड़ दो, जो भी तुम्हारे डिमांड है, जो भी एक्स वाई जेड डिमांड है वो सारे डिमांड पूरा कर दी जाएगी। इंक्लूडिंग कि तुम्हारे जो टाडा के अंतर्गत जो टेररिस्ट, तुम्हारे जो क्या बोलते हैं, जो गुंडे हैं, जो कितने मर्डरर हैं, स्मगलर, सबको छोड़ दिया जाएगा। केसेस सारे विड्रॉ कर दिया जाएगा T-21 के अंतर्गत। तुम सबको अपना लेकर के जंगल में चले जाना, फिर भी मारपीट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस राजकुमार को छोड़ दो। इन किन प्रकार में। अब जैसे उसने हुआ तो इनको अरेस्ट किया गया। तो उसने गवर्नमेंट के कहने पर पीपी ने अपना वो कर दिया, एप्लीकेशन दे दिया। एप्लीकेशन दे दिया, कब दिया? 10 अगस्त 2010 को एप्लीकेशन दिया और फाइल्ड बाय स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसको फाइल किया था। क्या क्या करने के लिए दिया था? केस को विड्रॉ करने के लिए। किस सेक्शन में? 321 में। किस तरह के ऑफेंसेस को? इन आईपीसी के अंतर्गत जो हुए थे, साथ साथ में इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट के अंतर्गत हुए थे, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंसेस थे, इंक्लूडिंग टाडा एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंसेस हुए थे, सारे केसेस को विड्रॉ करने की बात थी। आप देख रहे हैं कि आईपीसी है। तो हम यही आपको देखना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कि आईपीसी हो, चाहे इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट हो, आर्म्स एक्ट हो, टाडा एक्ट हो, सबके अंतर्गत केस को विड्रॉ करने का ले लिया गया। और ग्राउंड क्या था कि ग्राउंड भी आपको देना पड़ेगा, किस ग्राउंड पर हम विड्रॉ कर रहे हैं। इनका कहना था कि अगर हम केस को विड्रॉ कर लेंगे तो इस एरिया में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वापस हो जाएगी, पीस एंड नॉर्मलसी वापस आ जाएगी। इन्हें बाद में देखिएगा कोर्ट इनको कितना फटकार लगाएगा कि एक गुंडे की धमकी पर आप कह रहे हो कि हम केस को विड्रॉ कर लेंगे तो पीस एंड नॉर्मलसी वापस हो जाएगी। कौन सी ऐसी गारंटी है कि उसके टाडा पोडा एक्ट के, टाडा के अंतर्गत, ऐसा व्यक्ति के अंतर्गत उसके गुंज को छोड़ दोगे तो दोबारा मारपीट नहीं करेगा, शांति हो जाएगी। तो ये सब चीजें बहुत इनको धमकाएगा, लेकिन अभी देख लीजिएगा फिलहाल
तो ये सब चीजें थे। अब उसी समय आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अप्लाई भी कर दिया था, और देखिए कब अप्लाई किया था, यहाँ तक कि केस अपने लास्ट स्टेज पर चल रहा था और 51 विटनेसेस ऑलरेडी स्टेटमेंट उनके रिकॉर्ड हो चुके थे। कितने विटनेसेस का रिकॉर्ड हो चुका था? 51 विटनेसेस के केसेस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे। अब जब ये न्यूज छपी कि ने सरकार जो है सारे वो वीरप्पन के सारे गुन्स को वो कर रही है, रिलीज कर रही है, सारे केसेस को विड्रॉ कर रही है, तो अब्दुल करीम, अब अब्दुल करीम के बारे में आप जान जाइए। अभी तक तो आप वीरप्पन के बारे में जाने कि वीरप्पन एक नोटोरियस गुन्स है, और राजकुमार के बारे में जाने जिनका किडनैपिंग हुआ, अबडक्शन हुआ था, जो कि एक साउथ इंडिया के फिल्म स्टार थे। लेकिन अब्दुल करीम देखिए, अब्दुल करीम एक मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से एक सोल्जर का एक फादर है, जो कि वंस सोल्जर ऑलवेज सोल्जर। तो अब्दुल करीम जो कि एक शकील अहमद का फादर है। अब शकील अहमद का फादर है, तो शकील अहमद एक ऐसा इंसान था जो कि वीरप्पन के खिलाफ लड़ते हुए, स्टेट की सिक्योरिटी देते हुए शहीद हो चुका था। तो अब्दुल करीम एक फादर है, किसके फादर हैं? तो फादर ऑफ द शकील अहमद, जो कि allegedly had been killed by the associates of the वीरप्पन। मतलब कि अब्दुल करीम अपने एक नौजवान बेटा जो कि उनका पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, जंगल मतलब उसमें जंगल की सिक्योरिटी में, जानवरों की सिक्योरिटी में लगा रहता है, वो उनके गुंस द्वारा, वीरप्पन के साथियों द्वारा मारा जाता है। उसने अपोज कर दिया, कहा कि नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है कि जो व्यक्ति इतना खतरनाक हो उसका केस आप वापस कर ले, और उसने विड्रॉल को अपोज कर दिया। अब जब विड्रॉल का अपोज किए तो अब देख रहे हैं कि केस स्टार्ट हो गया। केस का नाम भी है अब्दुल करीम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस तरह से यहाँ पे फैक्ट बहुत ही क्लियर हो गया। अब हम लोग आर्गुमेंट करेंगे। इस केस में शिवनंदन पासवान का जो केस लिया गया था, इस केस में शिवनंदन पासवान का जो आर्गुमेंट लिया गया था, शिवनंदन पासवान में तो यही कहा गया था ना कि आपको क्या देखना चाहिए किसी कंसेंट को, विड्रॉल के कंसेंट को देने के लिए। तो आपको गुड फेथ देखना होगा, इससे पब्लिक इंटरेस्ट को फायदा होगा नहीं होगा, पॉलिसी को, पब्लिक इंटरेस्ट, पॉलिसी, जस्टिस को क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कही गई थी कि ये देखना होगा कहीं ऐसा न हो कि नॉट फास्ट और रिस्टफल द प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब कि लॉ का जो प्रोसेस है वो भी कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप ऐसा कर दें कि लोगों का फेथ ही खत्म हो जाए। तो शिवनंदन पासवान का केस इस केस में कोर्ट किया गया था अब्दुल करीम के केस में, क्योंकि शिवनंदन पासवान का केस 86 में डिसाइड हुआ था, अब्दुल करीम का केस 2000 में डिसाइड हुआ था। तो आप जान ही रहे कि मैं पहले भी क्लासेस में कह चुका हूँ कि जो ऑलरेडी लीडिंग केसेस होते हैं और लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, जो पहले डिसाइड हो चुके रहते हैं, नए केसेस आने पर उनको कंटिन्यू कर लिया जाता है, उनके रेशियो को फॉलो किया जाता है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्या शिवनंदन पासवान के केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन था कि आपको ये चीजें ध्यान में रख करके ही आप कंसेंट देना होगा, क्या इस केस में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट इसी बात को एनालाइज करेगा, ऑनरेबल जस्टिस सवरवाल इसी पर एनालाइज करेंगे कि क्या यह जो विड्रॉल हो रहा है गुड फेथ में हो रहा है, क्या इस विड्रॉवल से पब्लिक पॉलिसी और जस्टिस को फायदा होगा, क्या इस विड्रॉवल से प्रोसेस ऑफ लॉ को सफर होगा या प्रोसेस ऑफ लॉ को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इस तरह के पॉइंट को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब हम आएंगे अब्दुल करीम में सुप्रीम कोर्ट का कहना था क्या था। पहला काम तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट और ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूटर में दोनों में डिफरेंस है। कहा कि अगर आपको डायरेक्शन मिल गया, गवर्नमेंट देती है डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन मिल गया तो प्रोसिक्यूटर की क्या ड्यूटी है? क्या प्रोसिक्यूटर की कोई भी ड्यूटी नहीं है? क्या प्रोसिक्यूटर सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस की तरह की जाकर के वहां से लेकर के और वहां जमा कर दे? नहीं। इसमें कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को खुद अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू अप्लाई हिज माइंड टू रिलेवेंट मटेरियल एंड गुड फेथ। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद अप्लाई करना होगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो रिलेवेंट फैक्ट्स के बेसिस पर हम डिसाइड करने जा रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्कस करना होगा कि माइंड अप्लाई करेगा कि रिलेवेंट मटेरियल अवेलेबल है और हम गुड फेथ में करने जा रहे हैं, और मैं खुद से पर्सनली सेटिस्फाइड हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट को इसमें सर्व होगा। इस तरह का आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपना माइंड अप्लाई करके इस चीज को देखना होगा। अब ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट की बात आती है तो कोर्ट की भी एक ड्यूटी बनती है कि वो भी देख ले कि जो काम हो रहा है गुड फेथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर
विड्रॉल का कंसेंट देंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट को क्या फायदा होगा, और ऐसा तो नहीं ना कि इट विल सफर द फर्स्ट और मैनिफेस्ट इनजस्टिस। और ये ध्यान में रखना होगा कि हमारे कंसेंट देने से किसी पार्टी के साथ इनजस्टिस तो नहीं होगा ना। तो ये सब बातें आप प्रोसिक्यूटर को भी ध्यान में रखनी है और कोर्ट को भी ध्यान में रख करके केस को डिसाइड करना होगा। अब इस केस का एप्लीकेशन है, अब इस केस में अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो अब हमने देखा कि दो पॉइंट है, एक शिवनंदन का केस का रेशियो है, सबसे पहली बात को आपको ध्यान में रख लेना होगा। एक शिवनंदन का रेशियो है और दूसरा कोर्ट ने अपना खुद का एक रेशियो दिया है। इन दोनों के रेशियो के बेसिस पर अब इस फैक्ट को हम अप्लाई करेंगे कि क्या होना चाहिए। अब आते हैं कि क्या ये गुड फेथ में हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहली बात इसमें पहला वायलेशन यही हुआ है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपना माइंड अप्लाई किया ही नहीं। एक्चुअली हुआ क्या कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने खुद कोर्ट में एक्सेप्ट किया कि हम मुझे रिपोर्ट मिली है कि इससे शांति इस्टेब्लिश होगी। तो मतलब कि कोर्ट का कहना था कि भाई तुम खुद क्यों नहीं पढ़ करके आए कि जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ ना कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू रीड द रिपोर्ट। तुम खुद ही रिपोर्ट पढ़ने का तुम्हें मौका ही नहीं मिला, तुम पढ़े हो नहीं रिपोर्ट, और तुम दूसरा ने कह दिया कि हाँ यहाँ पे इससे शांति बैठेगी, इससे शांति स्टेब्लिश होगी, तो तुम मान लिए। तुम्हारी कुछ ड्यूटी है, तुम्हें खुद का अपना माइंड अप्लाई करना होगा। फिर दूसरा पॉइंट कहा गया था कि कोर्ट ने माना कि तुमने यहाँ पर अपना माइंड अप्लाई ही नहीं किया। कोर्ट ने क्या क्या कहना था कि यू डिड नॉट अप्लाइड हिज ओन माइंड, जबकि कई केसेस में कहा जा चुका है कि तुम्हें खुद का अपना माइंड अप्लाई करना होगा। और तीसरा पॉइंट ये रहा कि नथिंग कंसीडर्ड अबाउट प्रोसिक्यूशन ऑफ विटनेसेस। और इसमें एक बात और ध्यान में रखना होगा, कोर्ट ने कहा कि जैसे कि बेंथम ने भी कहा है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो विटनेसेस होते हैं, आईज एंड ईयर्स एंड आईज ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो विटनेसेस जो कोर्ट में आया है, इतना साल इतना रिस्क लेकर के आया है, वीरप्पन का कितना डर है कि वीरप्पन के खिलाफ कोई विटनेस अगर कोर्ट में जा रहा है तो समझ रहे कितनी जान का खतरा है। पूरी सरकारें जहां हिलती हो वहां कोई विटनेस के रूप में वीरप्पन के खिलाफ खड़ा हो जाए, कितनी बड़ी बात होती है, सोचिए। तो इस तरह के मैटर में कोर्ट ने कहा कि जो विटनेसेस का जो जिंदगी दाव पे लगी हुई है उसके बारे में तुम लोग सोचे ही नहीं, उसको ध्यान ही नहीं दिए कि जिन अब हम रिलीज कर रहे हैं, जिन एक्यूज को रिलीज, इतने नोटोरियस एक्यूज रिलीज होंगे तो विटनेस के ऊपर क्या असर डालेंगे, क्या विटनेस को थ्रेट देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, मर्डर करेंगे। तो उनकी सिक्योरिटी के बारे में कुछ सोचे नहीं, तुम लोग कुछ सोचे नहीं हो, बस ऐसे ही आ गए हो। और फिर कहा कि अगर राजकुमार, जब राजकुमार और नो सिक्योरिटी रिगार्डिंग रिलीज ऑफ राजकुमार, और क्या ऐसी गारंटी है कि तुम केस को विड्रॉ कर दोगे तो वो राजकुमार को रिलीज कर देगा। और सिर्फ उसकी बात है कि नहीं, हाँ कोई इस तरह का ग्राउंड पे रियलिटी नहीं, यहाँ उसने प्रॉमिस किया कि मैं रिलीज कर दूंगा, नहीं किया तो नो सिक्योरिटी रिगार्डिंग रिलीज ऑफ द राजकुमार। और फिर कोर्ट ने खुद मुद्दा उठाया कि जब राजकुमार जब जंगल में जा रहे थे, अपने फर्म में जा रहे थे, तो ठीक है कि चलो राजकुमार ने नहीं बताया कि नहीं हम फर्म पे जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी तो उस बॉर्डर पे ऑलरेडी ऑलरेडी जब इनपुट मिल रहा था कि उस तरह का काम कर सकता है, राजकुमार को किडनैप कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं वहां पे सिक्योरिटी अरेंज कर रखे थे कि जैसे राजकुमार उस तरफ से मूव करते तुम इन्फॉर्म कर देते एडमिनिस्ट्रेशन को। तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी लैप्स है राजकुमार का भी। और कोर्ट ने कहा कि इट विल लीड एनार्की, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोर्ट ने कहा कि अगर अगर एक विलेन जो है, एक गुंडा जो है, एक डकैत है, एक स्मगलर है, अगर एक व्यक्ति को किडनैप करके अगर दो दो सरकारों को धमकी दे दे और दोनों सरकारें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारें अगर झुक जाए, तो कल को तो हर एक आदमी यही सोचेगा कि अरे यार हम चीफ मिनिस्टर बनकर क्या फायदा होगा, हम प्रधानमंत्री बनकर क्या फायदा होगा, इससे अच्छा कि हम वीरप्पन की तरह ही विलेन बन जाए। सरकारें हमारे कदमों में झुकेंगी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये सब हमारे कदमों में झुकेंगे, हमारी सलामी ठोकेंगे। तो कहा गया कि यार इस तरह से तुम करोगे तो पूरे सोसाइटी में एनार्की फैल जाएगी। एनार्की फैलने का तो कोर्ट ने देखो बहुत ही इसमें कहा भी है, यूज भी किया है इसमें वर्ड कि इट डज नॉट अपीयर दैट एनी बॉडी कंसिडर दैट इफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का ये हाल हो जाए जो सोसाइटी में एक इम्प्रेशन दे
गिव एन इम्प्रेशन टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बीइंग लॉ ब्रेकर। खुद को ही अगर गवर्नमेंट अपने आप को लॉ ब्रेकर के रूप में अगर शो करने लगे, तो क्या ये सिटीजन को इनवाइट नहीं करेगा टू लॉ ब्रेक करने के लिए? तो इस तरह के पॉइंट को, अगर इस तरह के मैटर पर अगर एक व्यक्ति किसी को किडनैप करके दो दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को धमकी दे दे और दो दो राज्य के मुख्यमंत्री जी सर करने लगे, आप जो कहें वो फाइनल है, अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये सब ठीक है? नहीं। कहा कोर्ट ने कहा कि अगर हम इसमें इस तरह के मैटर में अगर हम लोग विड्रॉल दे दें, कंसेंट दे दें, तो यहाँ पे तो एनार्की फैल जाएगी। और दूसरी बात कहा कि इसमें से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लोगों का फेथ उठ जाएगा। तो इस तरह का पॉइंट आप देख रहे हैं कि एक तरफ से एनार्की फैल जाएगी, दूसरी तरफ से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से जो लोगों का भरोसा है वो भी खत्म हो जाएगा। और फिर कहा गया कि देखो, नेशन की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, हर एक नेशन की पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखे। क्या रखें? अपने आप को इंडिपेंडेंस रखे और अपने टेरिटोरी की रक्षा करें। मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी इंडिपेंडेंसी खत्म कर दिया जाए, अपना खुद का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाए। नहीं, घोड़ा रहेगा तभी घास खाएगा, घोड़ा जिंदा रहेगा तभी घास खाएगा। तो ये ठीक है कि राजकुमार को नहीं छोड़ेगा, बहुत करेगा, मर्डर कर देगा, क्या कर लेगा, लेकिन इस तरह की एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी राज्यों की सरकारों को पूरे हर चीज को दाव पे लगा देना ये ठीक नहीं है। और फाइनली एक ये भी पाया गया था कि लिट्टे से उसका कनेक्शन था। वीरप्पन किसका कनेक्शन था? लिट्टे का कनेक्शन था। लिट्टे एक श्रीलंका में एक तमिल वो था, तमिल ग्रुप था वहां पे, जो कि एक टेररिस्ट की तरह काम करता था। हर एक अपने अपना मूवमेंट होता है, लेकिन लिट्टे ये भी मानता था कि हमें तमिलों को एक अलग देश बनाना चाहिए, और उसके इस लॉजिक में तमिलनाडु को भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री का डिमांड था उसका। तो लिट्टे जो प्रभाकरण का उसका हेड था, लिट्टे जो था, लिट्टे का हेड कौन था? प्रभाकरण था। तो उसके माइंड में था कि हमें तमिलनाडु को तमिलों के लिए एक अलग से देश बनाने की डिमांड होनी चाहिए। देखो, तमिलनाडु का कॉम्बिनेशन जो होगा, अगर वहां के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से देखोगे, तो जैसे साउथ में तमिलनाडु का मतलब क्या होता है, तमिल लैंग्वेज में तमिलनाडु का मतलब क्या होता है? तमिल एक लैंग्वेज को डिनोट करता है, नाडु जो होता है ना, देश को रिप्रेजेंट करता है। तो तमिलनाडु का मतलब ही होता है ये हिंदी में कि कंट्री ऑफ तमिल्स, तो उसका नाम था तमिलनाडु। तो यहाँ पे था कि जैसे कि ठीक है कि हम लोग उसको उस कंटेक्स्ट में नहीं देखते हैं, इंडिपेंडेंट के हिसाब से नहीं देखते हैं, लेकिन लिट्टे देखता था। और वीरप्पन जो है, लिट्टे के हेड प्रभाकरण को अपना बॉस समझता था। क्योंकि एक मूवी भी आई थी वीरप्पन की मूवी, तो उसमें भी आप देखते हैं कि वीरप्पन जब फाइनली पकड़ा जाता है और मारा जाता है, तो वीरप्पन के फाइनल जो डिजायर था कि हमें प्रभाकरण से मिलने का मौका मिलेगा, और वो प्रभाकरण से मिलने के लिए जा रहा था। तो इस तरह से वीरप्पन को मारा गया था। तो वीरप्पन, इस केस में भी ये बात कहा गया है कि वीरप्पन का जो कनेक्शन है ऑलरेडी लिट्टे जैसे टेररिस्ट ग्रुप से है, जो कि पूरे भारत के सॉवरेनिटी को ही खतरा है। तो इस तरह के व्यक्ति के सामने झुकना सरकार के लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो इस तरह से कोर्ट ने इसको जस्टिफाइड नहीं माना और विड्रॉल को अलाउ नहीं किया। तो अब बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया। आप जब हम आएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप ये आपके सिलेबस में, इसलिए हम थोड़ा सा एक बार और झटका देंगे इस पे। आज डिसाइड हुआ 2000 में हुआ, सबरवाल ने डिस्कस किया है, वीरप्पन केस, राजकुमार केस, और फैक्ट आपको बता दिया है, और फैक्ट के बाद एप्लीकेशन दिया गया, 2000 में दिया गया एप्लीकेशन। ग्राउंड था कि इससे शांति वापस हो जाएगी। स्टेज कौन था? ऑलरेडी 51 विटनेसेस का एग्जामिन हो चुका था। अब्दुल करीम कौन थे? शकील अहमद के फादर थे। शकील अहमद अपने वीरप्पन के साथियों द्वारा मारे गए थे। और शिवनंदन पासवान के केस में यही रेशियो आया था कि कंसेंट जब आप देते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इससे गुड फेथ इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी जस्टिस स्टेब्लिश होगी। और डायरेक्शंस अब्दुल करीम के केस में भी रेशियो लेट डाउन किए गए थे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपनी खुद की ड्यूटी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपना खुद दिमाग अप्लाई करना चाहिए, और रिलेवेंट मटेरियल, गुड फेथ, ये सब देखना चाहिए। कोर्ट की भी अपनी ड्यूटी है। और जब हम इसमें लगाते हैं, अगर फैक्ट के हिसाब से लगाते हैं कि फैक्ट में क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना माइंड अप्लाई किया, क्या यह गुड फेथ में किया गया, क्या इस तरह से सोसाइटी में पीस वापस होगी, तो यही कहना था कि यहाँ पर इसने न ही रिपोर्ट को पढ़ा है, न ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपने माइंड को अप्लाई किया है,
और विटनेसेस के प्रोटेक्शन के बारे में कुछ नहीं सोचा गया है। और राजकुमार के रिलीज होने की कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप विड्रॉ कर लेंगे तो रिलीज होगा ही, होंगे ही। और राजकुमार के सिक्योरिटी का लैप्स था। और आप देख रहे हैं कि इससे एनार्की होगी और लॉ ब्रेकर्स की संख्या बढ़ जाएगी। और इस तरह से पैरालाइज कर देगा डेमोक्रेसी के में फेथ लोगों का खत्म कर देगा। और हर एक कंट्री की अपनी ड्यूटी बनती है कि वो इंडिपेंडेंस और टेरिटरीज की रक्षा करे। और वीरप्पन एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। और वह सिर्फ वहीं तक ही नहीं, उसका जो माइंडसेट है कि हम पूरे भारत को ही तोड़ करके अलग कर देंगे, क्योंकि वो लिट्टे को अपना हेड मानता है, प्रभाकरण को हेड मानता है। इस तरह के मामले में इस केस को रिजेक्ट कर दिया गया, विड्रॉल अलाउ नहीं किया गया। अब 3 केस और हैं जिसको ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा ने डिसाइड किया था। और तीनों केस, एक केस है 14, 16, 18, 2-2 साल का गैप है, 14, 16, 18। तो अब इसमें हम देखेंगे बैरम मुरलीधर का केस है। अब बैरम मुरलीधर का केस तो बहुत ही अच्छा केस है, क्योंकि आपस में प्यार मोहब्बत होता है, पड़ोसन से प्यार होता है। और मैं तो हमेशा ही कहता ही हूँ, मैं हमेशा कई बार लिख लिख भी चुका हूँ कि जनरली पड़ोसन से पहला प्यार होता है, होना भी चाहिए, दैट इज अ गुड थिंग्स। तो इसमें भी यही हुआ था और दोनों ने आपस में मिल करके इलोप कर गए। हाँ, प्यार किए। इलोप करने का मतलब होता है कि एक वर्ड मैंने लिखा हुआ हो, इलोप एक प्रॉपर वर्ड होता है। रन अवे से इलोप, इलोप का मतलब होता है कि आप घर छोड़ करके पैरामाउर के साथ भागते हैं। तो जब पैरामाउर के साथ भागते हैं तो उसको इलोप कहा जाता है। अदरवाइज भागते हैं तो उसको रन अवे बाकी चीजें वर्ड होता है। तो इलोप कर गए, प्यार मोहब्बत हुआ, इलोप कर गए। लेकिन आप जान ही रहे हैं कि दिलवाले में मामा ठाकुर भी आ ही जाएंगे। और उन्होंने केस करा दिया कि सेक्शन 366 ए आईपीसी के अंतर्गत लड़के के खिलाफ एफआईआर हुई। जब लड़के के खिलाफ एफआईआर हुई तो उसका फादर दुबई में रहता था, वो भी बेचारा सुना तो वापस आया। वापस आया तो पुलिस ने उसको बुलाया। पुलिस ऑफिसर ने धमकी दिया कि देखो भाई, तुम मुझे 6,000 रुपया दे दो, नहीं तो मैं किडनैपिंग में तुम्हारा भी नाम डाल दूंगा, तुम्हारा बच्चा तो छोड़ो, तुम्हारा भी नाम डाल दूंगा। और तुम प्रूफ करते रहना कि तुम दुबई में थे, कहाँ थे कहाँ नहीं, जेल में डाल दूंगा, उसके 6,000 रुपया दे दो। तो उसने कहा कि साहब देखिए, 6,000 तो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो पुलिस ने कहा चलो, अगर 6,000 नहीं दोगे तो 5,000 दे दो, 5,000 दे दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे के खिलाफ ऐसी तगड़ी धारा लगाऊंगा कि जिंदगी भर जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकलोगे। तो बाप बाप होता है, लेकिन वो पैसा था ही नहीं। तो बाप ने क्या किया कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर होते हैं वहां पे कंप्लेन कर दिया कि ये पुलिस वाला कह रहा है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें भी फंसा दूंगा और तुम्हारे बेटे के खिलाफ भी गलत तरीके से बहुत कड़ी कड़ी धाराएं यूज कर दूंगा, सेक्शन यूज कर दूंगा। अब इस तरह से ट्रैप किया गया और पुलिस ऑफिसर ने रंगों हाथ पैसा लेते हुए पकड़ा गया। बाद में क्या हुआ कि केस स्टार्ट हो गया उस व्यक्ति के खिलाफ। तो बाद में क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट में ने वो दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, चेंज हुई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने वो दे दिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्शन दे करके, वो कहा कि उस पुलिस ऑफिसर के यहाँ से केस को विड्रॉ कराओ। और ग्राउंड दे दिया गया था कि पुलिस ऑफिसर जो है नक्सलाइट मूवमेंट में भी नक्सलाइटों के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उसका बहुत ही अच्छा मतलब रिकॉर्ड है, ये सब करके उसके खिलाफ विड्रॉल का एप्लीकेशन दे दिया गया। अब विड्रॉल का जब एप्लीकेशन दिया गया था तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि क्या था, रीजन क्या दिया गया था, गुड वर्क ऑफ एक्यूट एंटी एक्सट्रीमिस्ट फील्ड में अच्छा काम किया है और कई अच्छे तरह से उसने काम किया है, अदर मेरिटोरियस वर्क काम किया है। और साथ साथ में वहां से हम केस को विड्रॉ करके वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में हम केस चलाएंगे। और स्पेशल कोर्ट में जब गया तो स्पेशल कोर्ट ने उसको एप्लीकेशन नहीं दिया, कहा कि नहीं नहीं, ये ग्राउंड सूट नहीं है। हाई कोर्ट ने गया तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व डिसीजन ऑफ स्पेशल कोर्ट वाज इम्पेसेबल। इम्पेसेबल का मतलब ये होता है कि एक अलग वर्ड में लिखा हूँ, अलग नहीं, बहुत अच्छा वर्ड है, जो कि परफेक्ट होता है। इम्पेसेबल माने क्या होता है, एक परफेक्ट होता है। तो देखो, मैं तुम लोगों को पढ़ाता भी हूँ और अपना ज्यादा ध्यान अपने सीखने पे लगाता हूँ, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, चाहे तुम्हारा ये सब फॉर्मेट हो सीखने का हो, तो तुम लोगों को भी हमेशा सीखना चाहिए। और सिर्फ लॉ ही नहीं, लॉ के साथ साथ लैंग्वेज भी सीखना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। वो जितना सीख गए, नहीं सीखे तो फिर ट्राई की सिवा कर ही क्या सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली बात, एक सबसे रिमार्केबल बात ये कही गई थी कि ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा गया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करना चाहिए। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्टमैन का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें गर्लफ्रेंड को लेटर भेजना है, लव लेटर भेजना है,
तो हम ले जा करके पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे। तो पोस्ट ऑफिस वाला तो ऐसा तो नहीं होता है, खोल करके पढ़ता है, इसके बाद कहता है कि नहीं तुम्हारे गर्लफ्रेंड को पहुंचाऊं कि ना पहुंचाऊं, वो क्या कहता है, नहीं कुछ नहीं, वो सिर्फ एड्रेस देखता है, ले जाकर पहुंचा देता है, ध्यान ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होता है कंटेंट क्या है क्या नहीं है। इसी तरह से इसमें कहा गया था कि हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पोस्टमैन की तरह काम नहीं करना चाहिए कि नहीं गवर्नमेंट ने जैसा डायरेक्शन दे दिया और उस डायरेक्शन को ला करके तुमने कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया, नहीं, ऐसा ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा काम पोस्ट ऑफिस की तरह नहीं है। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि एक ऐसा जजमेंट है जिसमें कि पहली बार जस्टिस दीपक मिश्रा ने यूज किया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करना है। तो इसलिए मैं तुम लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ कि इस लाइन को लिख देना। और देखो, 3 जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम दीपक मिश्रा ने डिसाइड किया है, चाहे वो जजमेंट 14 का हो, चाहे 16 का हो, चाहे 18 को, तीनों में यही वर्ड यूज उन्होंने किया है कि पोस्ट ऑफिस को पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है पोस्ट ऑफिस की तरह इसको काम नहीं करना चाहिए। तो इस पोस्ट में वर्ड यही है, पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करना चाहिए, खुद का माइंड अप्लाई करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ध्यान में कि आपको इस बात का जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि इससे फायदा क्या होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ध्यान में रखना होगा कि इसका पर्पज इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट को फायदा होना चाहिए। फिर कहा गया था कि अगर मान लीजिए ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देती है कि इस केस को विड्रॉ कर लें, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ये ऑप्शन होता है। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ बाइंडिंग नहीं होता है कि नहीं गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दिया कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ केस को विड्रॉ कर लीजिए, तो आप तुरंत से अप्लाई कर दिए, विड्रॉ कर दिए, नहीं। ये तुम्हारी स्टेचुटरी ड्यूटी है कि तुम खुद अपना माइंड अप्लाई करो और केस में विड्रॉ करना चाहिए कि नहीं विड्रॉ करना चाहिए। तो इस तरह का मैटर ये ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें कहा गया था कि जो गवर्नमेंट का डायरेक्शन होता है इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पीपी और एपीपी। क्यों? क्योंकि पीपी और एपीपी जो होते हैं जुडिशरी के पार्ट होते हैं, रादर देन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। ठीक है कि एग्जीक्यूटिव से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन ये सब जो कोर्ट के ऑफिसर की कैटेगरी में आते हैं। और कोर्ट ने कहा कि इस केस में देखो भाई, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मैटर है और बहुत ही सीरियस मैटर, इसमें हम अलाउ नहीं कर सकते। और कोर्ट ने कहा कि सीएबी का भी जो रिपोर्ट है, एसीबी का, एंटी करप्शन ब्यूरो का भी रिपोर्ट यही है कि इस केस को विड्रॉ नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने 4 पॉइंट कहा कि पीपी को पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट के ऑर्डर से पीपी ईपीपी बाध्य नहीं है। तुम लोग इंडिपेंडेंट बॉडी हो, खुद का डिसीजन ले सकते हो। हाँ, लेकिन ये होता है कि प्रैक्टिकली होता है कि प्रमोशन को या डिस्ट्रिक्ट वाइज अच्छे जिले में भेजना, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली तो गवर्नमेंट का डायरेक्शन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट तो आपको रुला ही देती है। और थ्योरेटिकली अच्छी बातें लगती हैं कि नहीं हम इंडिपेंडेंट हैं, चीफ मिनिस्टर की बात को नहीं मानेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब आएगी ना तो आपको हालत खराब हो जाएगी, आप चुपचाप मान लेंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव हमेशा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, वो अलग बात है। और कोर्ट ने इस बेसिस पर लेकर के इस केस में कंक्लूजन यही दिया कि इस केस में विड्रॉ को अलाउ नहीं किया गया। एक अलग केस है, एक केस का नाम है मिसर्स वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस एसपी गुप्ता केस। तो एसपी गुप्ता केस के नाम से हम याद कर सकते हैं। इसमें भी जस्टिस दीपक मिश्रा ने डिसाइड किया था और इसमें भी बताया था कि कोर्ट की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। कोर्ट की ड्यूटी यही है कि खुद का आप अपना माइंड अप्लाई करिए और चीजें देखिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये पीपी की भी ड्यूटी है, क्योंकि दोनों की ड्यूटी है, क्योंकि दोनों ही लिम्ब है। अभी मैं पिछले क्लास में बता रहा था कि बोथ आर लिम्ब ऑफ द सेक्शन 321, तो दोनों की ड्यूटी है। और ये एक्सेप्ट किया जाता है कि आप जो है पीपी जो इंडिपेंडेंट पर्सन है। देखिए, अभी मैं इस पार्ट को अगर इससे आप कोरिलेट करेंगे तो एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा कि आप गवर्नमेंट के डिसीजन से बाइंडिंग नहीं है, और यहाँ पर कह रहा है कि आप इंडिपेंडेंट है। तो बात तो एक ही है। जब एक ही जज कई जजमेंट लिखते हैं तो जो जजेस की जजमेंट की जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती रहती हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें कहा गया था कि इंडिपेंडेंट आप हैं, और कहा कि आपको खुद अपना माइंड अप्लाई करना है, आपको खुद रखना है कि अगर विड्रॉ करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा, सोसाइटी पर क्या होगा, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। और कह रहा है कि आपको वही बात में फिर कहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को है आप पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करना है। तो 3 बात इसमें ध्यान में रखा गया, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एंड दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर नॉट द पोस्ट ऑफिस।
अब्दुल करीम लास्ट का केस है, बहुत ही अच्छा जजमेंट है, रिसेंट जजमेंट है, तीनों को ध्यान में रखना होगा। इसमें कहा गया था कि आप किस स्टेज पर विड्रॉ कर सकते हैं, तो कहा गया कि किसी भी स्टेज पर विड्रॉ कर सकते हो, चाहे एविडेंस नो एविडेंस वाज टेकन, चाहे एविडेंस लिया ही नहीं गया हो, नो एविडेंस वाज टेकन, तब भी आप विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि डिस्चार्ज से पहले भी विड्रॉ हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीट एविडेंस कंप्लीट हो गया हो, पूरा एविडेंस कंप्लीट हो चुका हो, सिर्फ जजमेंट बाकी हो, मतलब बस जजमेंट जो लिखने ही वाले हैं, या लिखने का मतलब लिख दिए साइन नहीं किए, क्योंकि जजमेंट तभी होता है जब साइन हो जाता है तब, तो लिख भी दिया गया, साइन सील मोहर नहीं हुआ, तब तक भी केस को विड्रॉ किया जा सकता है। तो इसमें यही कहना मतलब है कि चाहे कि एविडेंस न लिया गया हो, चाहे एविडेंस कंप्लीट ले लिया गया हो, किसी भी स्टेज पर आप केस को विड्रॉ कर सकते हैं। और कहते हैं कि इसका रीजनिंग क्यों क्या है, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ। जैसे दीपक मिश्रा ने कहा कि इसका रीजनिंग यही है कि वर्ड यूज हुआ है कि एट एनी टाइम बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, ये इस रीजनिंग पर कर सकते हैं। फिर कहा गया था कि दूसरा पॉइंट है कि इसका पर्पस क्या होना चाहिए, टू सेव सोशल फैब्रिक एंड ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूटर एंड कोर्ट, वही है कि प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, कोर्ट की ड्यूटी क्या होना चाहिए, कुल मिला जुला करके सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया भी था कि पोस्ट ऑफिस की तरह आपको काम नहीं करना चाहिए। और तीनों जजमेंट को हमने समराइज कर दिया है जो दीपक मिश्रा द्वारा डिसाइड हुआ है। आप देख रहे हैं कि पहला जजमेंट बैरम मुरलीधर का है, आप देख रहे हैं पहला जजमेंट बैरम मुरलीधर का है, दीपक मिश्रा ने डिसाइड किया। दूसरा जजमेंट आपका है एसपी गुप्ता का है, इसको भी दीपक मिश्रा ने डिसाइड किया। तीसरा जजमेंट अब्दुल वहाब का है, इसको भी जस्टिस दीपक मिश्रा ने डिसाइड किया था। तो सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी मतलब कॉमन इन ऑल जजमेंट में कॉमन क्या है, तो कॉमन इन ऑल में आप देख रहे हैं कि इसमें तीनों में कहा गया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करना है। दूसरा आप देखेंगे कि दोनों में तीनों में 2 साल का गैप है, जैसे 2014 में से 16 का 2 साल गैप, 16 से 18 का 2 साल गैप। और तीनों में ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा ने डिसाइड किया केस को, ये सब चीजें सिमिलरिटी है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। और आपका जो सिलेबस है मैंने यूनिट 6 खत्म कर दिया है, और यूनिट 9 में 2 ही टॉपिक था, प्ली बार्गेनिंग और कंपाउंडेबल ऑफ ऑफेंसेस। तो मैं यूनिट 9 का कंपाउंडेबल ऑफ ऑफेंसेस डिस्कस करने के बाद तेजी से सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। थैंक्स।